Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyata हरे कृष्णा मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम अहं वन्दे श्री गुरु दिनतारिणम परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है और आज बहुत ही शुभ दिन है। आज जैसे हम जानते हैं कोलावे श्रीधर चैतन्य महाप्रभु की लीला में एकदम उत्तम भक्त, उनका आज तिरोभाव दिवस है। तो आज इस उपलक्ष्य में सभी को श्रीधर कोलावे श्रीधर तिरुभाव की सबको शुभकामनाएं। जैसे हम जानते हैं वैष्णव का आविर्भाव और तिरुभाव एक समान होता है। तो हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है श्रीमद् भागवतम से स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोका क्रमांक 9। तो क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा एक्चुअली मैंने देखा नहीं था शेड्यूल, तो अभी सर्वदेव गिरधारी प्रभु ने बताया, तो धन्यवाद सर्वदेव गिरधारी प्रभु। तो श्लोका पहले पढ़ते, यद वेणम उत्पथ गतम विजवाक्य वज्र निष्पृशत पौरुष भगम निरये पतंतम त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम च लेभे दुग्धा वासुनि वसुधा सकलानि येन। ट्रांसलेशन purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय। Translation: Maharaj Vena went astray from the path of righteousness, and the Brahmanas chastised him by the thunderbolt curse. By this, King Vena was burnt with his good deeds and opulence and was enrolled to hell. The Lord, by his causeless mercy, descended as his son by the name of Prithu, delivered the condemned King Vena from hell, and exploited the earth by drawing all kinds of crops as produce. Purport: according to the system of Varnashram Dharma, the pious and learned Brahmanas were the natural guardians of society. The Brahmanas, by their learned labor of love, would instruct the administrator kings how to rule the country in complete righteousness, and thus the process would go on as a perfect welfare state. The kings or the Kshatriya administrators would always consult the council of learned Brahmanas. They were never autocratic monarchs. The scriptures like Manu Samhita and other authorized books of the great sages were guiding principles for ruling the subjects, and there was no need for less intelligent persons to manufacture a code of law in the name of democracy. The less intelligent mass of people have very little knowledge of their own welfare. As a child has very little knowledge of the future well-being. The experienced fathers guides the innocent child towards the path of progress, and the childlike mass of people need similar guidance. The standard welfare codes are already there in Manu Samhita and other Vedic literatures. The learned Brahmanas would advise the king in terms of those standard books of knowledge and with a reference to the particular situation of time and place. Such Brahmanas were not paid servants of the king, and therefore they had the strength to dictate to the king on the principle of scriptures. This system continued even up to the time of Maharaj Chandragupta, and Brahmana Chanakya was his unpaid prime minister. Maharaj Vena did not adhere to the principle of ruling, and he disobeyed the learned Brahmanas. The broad-minded Brahmanas were not self-interested, but looked to the interest of the complete welfare for all the subjects. They wanted to chastise King Vena for his misconduct, and so prayed to the Almighty Lord as well as cursed the king. Long life, obedience, good reputation, righteousness, prospect of being
promoted to higher planets, and blessing of great personalities are all vanquished simply by disobedience to a great soul. One should strictly try to follow in the footsteps of great souls. Maharaj Vena became a king undoubtedly due to his past deeds of righteousness, but because he willfully neglected the great source, he was punished by the loss of all the above mentioned equitism. In the Vamana Purana, the history of Maharaj Vena and his degradation are fully described. When Maharaj Prithu heard about the hellish condition of his father Vena, who was suffering from leprosy in the family of Mlecha, he at once brought the former king to Kurukshetra for his purification and relieved him of all suffering. Maharaj Prithu, the incarnation of God, descended by the prayer of the Brahmanas to rectify the disorders on the earth. He produced all kind of crops, but at the same time he performed the duty of a son who delivers his father from hellish condition. The word putra means one who delivers from the hell called put. That is a worthy son. Mukam karoti vachalam pangum langete girim yat kripatam amandi Shri Gurudinitarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Paramananda Madhavam. हरे कृष्णा. सभी का स्वागत है. तो आज का इस श्लोक में जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया कि महाराज वेणु वो जो राजा थे, वो जो धर्म के जो पद से भ्रष्ट होके उनको फिर ब्राह्मणा ने क्या किया, उनको शाप दिया और कहते हैं कि जैसे वज्र के समान, एंड उसके वजह से उनके जितने भी अच्छे पुण्य कर्म थे वो सारे क्षीण हो गए और उनको मतलब नरक में जाना पड़ा. और फिर भगवान अपने करुणा से उनके पुत्र बन के पृथु महाराज जो भगवान के शक्तिवेद अवतार है वो उन्होंने आए और अपने जो मतलब महाराज वेणु का उन्होंने उद्धार किया. तो यहाँ पे वही सॉरी मेरा एक्चुअली कोई तैयारी है नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं रुकने के बाद जितने भी यहाँ पे भक्त है वो इस संदर्भ में कुछ अपना टिप्पणी दे. तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक राजा का उत्तरदायित्व है अपनी प्रजा के प्रति, क्योंकि अगर राजा जैसे बोलते हैं ना, जैसे राजा वैसे प्रजा. तो और प्रभुपाद यहाँ पे अच्छी तरह से लिखते हैं कि आज का जो मतलब ये पूरा जो धर्म से वंचित हम लोग अभी जो कलयुग में प्रजा है, किसके वजह से, इसका यही कारण है क्योंकि आजकल के जो राजा है इनको मतलब ये केवल आधुनिक तौर से अपना पूरा जो राज्य चला रहे हैं, ना धर्म ना शास्त्र के आधार पे नहीं. तो इसी तरह से जो वेणु महाराज वेणा थे मतलब पूरी तरह से मतलब धर्म मतलब पथभ्रष्ट होके इतना हो गया था कि ब्राह्मण, और प्रभुपाद यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लिखते हैं कि जो पहले जो राजा के मतलब जो उनको ज्ञान देते थे या सलाह देते थे वो ऐसा नहीं था कि वो मतलब राजा है और राजा से उनको कुछ आमदनी मिलती है और अपना परिवार चलता है, ये सोच के वो लोग मतलब राजा के मतलब उनको ज्ञान नहीं देते थे. वो केवल शास्त्र के आधार पर, अगर वो राजा गलत है तो सीधा गलत उनको मतलब कहने से डरते नहीं थे. अगर आज हम लोग देखते हैं तो हर कोई अपना फायदा कैसा है, अपना फायदा किसमें है, अगर उनका फायदा है और भले ही पूरा गलत शासन चल रहा है तो कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो सोचते हैं कि जितना पैसा मैं बटोर लेता हूँ, भले ही मेरे मतलब बाकी प्रजा का मतलब जो सब बुरा हो रहा है उनको उससे कोई लेना देना नहीं. लेकिन पहले जो थे ब्राह्मण, इसलिए कहते हैं कि आजकल ब्राह्मण है ही नहीं. तो सारे राजाओं को जो मतलब जो शिक्षा या ज्ञान देते थे वो ब्राह्मण होते थे और वो शास्त्र के आधार पे देते थे और बिना निडर होके, अगर राजा अगर गलत है तो सीधा उनको बता देते थे कि ये आपका निर्णय सही नहीं है, ये आपको करना नहीं चाहिए. और अगर राजा उनका बात नहीं मानता तो ऐसे ब्राह्मण उनको मतलब राज सिंहासन से नीचे निकालने से भी चूकते नहीं है. क्यों?
क्योंकि राजा जो कुछ भी करता है उसका असर प्रजा पे होता है। तो अगर प्रजा मतलब अगर हम प्रजा का अगर अच्छा आगे मतलब भविष्य चाहिए तो बहुत ही अच्छा राजा होना जरूरी है। इसकी वजह से जो है पृथु महाराज ये जो राजा वेणा थे उनको ब्राह्मण का शाप की वजह से उनको नरक की योनि में जाना पड़ा। और आगे चल के फिर वही भगवान जो पृथु महाराज उनके बेटे बन के आए। जैसे हम जानते हैं भगवान की वो शक्तिवेश अवतार है पृथु महाराज, और उन्होंने उनका उद्धार किया। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि मतलब पुत्र का अर्थ भी वही होता है जो पू नामक जो नरक है उससे जो मतलब अपने पिता का जो उद्धार कर सकता है उसको पुत्र कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि दो शब्द है, एक पुत्र और एक मूत्र। क्योंकि अगर हम देखेंगे अगर हम जन्म जो लेते हैं वो एक ही जगह से लेते हैं, राइट। पुत्र मतलब हर कोई जो जीव जन्म एक ही जगह से लेता है और जो हम मूत्र विसर्जन करते हैं वही जगह से। तो इसलिए कहते हैं अगर कोई पुत्र मतलब कोई अगर शिशु मतलब एक लड़का अपने पिता का उद्धार नहीं कर सकता, अपने वंश का नाम आगे नहीं बढ़ा सकता, तो वो केवल नाम के लिए पुत्र है। एक्चुअली उसका जो स्थिति मतलब उसकी जो छवि मतलब पुत्र के जगह मतलब वो मूत्र जैसे ही है, मतलब ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो ये दो शब्द पुत्र और जो, क्योंकि अगर वो योग्य नहीं है वो केवल नाम के लिए पुत्र है। और यहाँ पे आगे लिखते हैं कि महाराज जो पृथु थे उन्होंने जब पता चला कि उनके जो पिताजी है म्लेच्छ मतलब उनको वो जो कुष्ठ रोग है वो उससे वो पीड़ित है और वो भी नरक में, तो उन्होंने उनका उद्धार किया। तो एक्चुअली और इसमें वर्णाश्रम के बारे में भी प्रभुपाद स्टार्टिंग में लिखते हैं। जो राजा थे क्षत्रिय वो हमेशा ब्राह्मणों की सलाह लेते थे। वो मतलब राजा होते हुए भी वो लोग मतलब आज के जमाने में जैसे होते हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया वही सही है और किसी का ना सुनना, ऐसा नहीं होता था। और वो कैसे कैसे ग्रंथ मनु संहिता इत्यादि का मतलब इत्यादि का श्रवण करके उसमें क्या है प्रिंसिपल्स फॉर रूलिंग द सब्जेक्ट्स और मतलब उसका वो निर्देश मतलब उसमें जो निर्देश लिखे हैं मनु संहिता आदि ग्रंथ उसके उसका क्या कहते हैं निर्देश के अनुसार ही अपना मतलब प्रजा का वो ये करते थे। और वही और ब्राह्मण का वो सलाह लेते थे हमेशा ब्राह्मणों का। और जो ब्राह्मण होते थे वो केवल मतलब यहाँ पे तो प्रभुपाद लिखते हैं कि मतलब वो इवन मतलब वो क्या कहते हैं उनको तनख्वाह भी नहीं लेते थे वो। जैसे हम जानते हैं ब्राह्मण जो है मतलब वो पैसों के लिए ज्ञान मतलब पैसा मिलता है इसकी वजह से वो लोग लोगों को ज्ञान नहीं देते। उनका कर्तव्य ही वही है जो शुद्ध ब्राह्मण होते हैं। और वो केवल जो भी उनको भगवान के द्वारा जो मतलब सैंक्शन है जो कुछ मिलता है उसी में वो खुश रहते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि एजुकेशन मतलब एकदम आज के तारीख में एजुकेशन हॉस्पिटल ये सारे जो केंद्र है जो लोगों के मतलब देखभाल का जो केंद्र है वो आजकल पैसा बनाने का एक जरिया बन चुका है। मतलब आप आजकल स्कूल भेजना मतलब कितना लाखों का पैसा चाहिए, हॉस्पिटल जाना मतलब कितना लाखों का पैसा चाहिए। लेकिन पहले के इसमें ये सारे जो थे मतलब सबसे बड़ा जो ज्ञान जो ब्राह्मण देते थे वो पैसे कमाने के लिए नहीं था, लेकिन मतलब जो आगे जो पीढ़ी है उनका उद्धार हो और उनको धर्म के रास्ते पे चले, यही उद्देश्य होता था, ना कि पैसा कमाना। तो पहले ब्राह्मण ऐसे होते थे और हमेशा प्रजा का अच्छा मतलब वो धर्म को पालन करते करते अपना जीवन निवारण करे, ये सब सोच के वो राजा को इस तरह से ज्ञान देते थे कि राजा
अपनी प्रजा को धर्म के राह पे चलाते हुए शासन करे, ये उद्देश्य होता था। और जब ऐसे राजा नहीं लेकिन राजा अगर क्रूर या फिर अधर्मी हो, फिर वो उनको उनके सिंहासन से निकालने से भी नहीं डरते। वो ऐसा नहीं सोचते कि अगर मैं राजा के खिलाफ जाऊंगा तो राजा क्रोधित होके या मुझे दंडित करेगा या फिर मेरा आगे जीवन कैसा चलेगा, ये सब वो लोग नहीं सोचते थे। तो क्योंकि वो शुद्ध होने के कारण वो जो शुद्ध होता है, शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध भक्त, वो हमेशा उनको पता है कि उनको भी सही से जीवन धर्म का पालन करना है और औरों को भी सही धर्म पालन करने का निर्देश देना है। और वो क्योंकि पूरे भगवान के ऊपर पूरा आश्रित होते हैं, वो किसी चीज से नहीं डरते। तो पहले ऐसे ही होता था, तो वो ऐसे ब्राह्मण राजा से नहीं डरते थे। अगर वो कुछ गलत कर रहा है वो सीधा उनको बोल देते थे कि ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और अगर राजा ना माने तो जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, तो उनको वो श्राप इसलिए नहीं देते कि वो श्राप से भी उनका उद्धार हो। अगर हम देखेंगे आगे जो महाराज वेणा, भगवान खुद उनके पुत्र बन के आए उनका उद्धार करने के लिए। और यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि महाराज वेणा, क्योंकि उनके पहले जन्म में बहुत सारे पुण्य कर्म थे, इसके लिए वो राजा बने। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि बहुत सारा पुण्य कमा के अगर हम कोई अच्छी स्थिति प्राप्त करें तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो अगले जन्म में जो हमको अच्छा जन्म मिलता है किसी धनी परिवार में या किसी कुछ अच्छा पोजीशन, इसका मतलब ये नहीं कि हम भक्ति शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इतना अच्छा पुण्य होने के कारण वो राजा बने, लेकिन पूरा वो जो थे धर्म का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे थे। पूरा धर्म के विरुद्ध उनका शासन चल रहा था। तो इससे पता चलता है कि पुण्य जो हम अर्जित करते हैं वो बहुत कोई उसका फायदा नहीं, एक गारंटी नहीं दे सकता कि आपने ये जन्म में बहुत सारा पुण्य इकट्ठा किया और अगले जन्म अगर आप कोई अच्छे परिवार में जन्म लिए, कोई धनी परिवार में जन्म लिए या कोई आप बहुत बड़े व्यक्ति बने जहाँ सब लोग जानते हैं, लेकिन ये पुण्य आपको ये गारंटी नहीं देगा कि आपको भक्ति मिलेगी। तो इसलिए हम लोग जो भक्त होते हैं, हम लोग पुण्य और पाप का बारे में हम लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं। हम केवल एक ही बारे में सोचते हैं, वो है कृष्ण के भक्ति के बारे में। क्योंकि पुण्य क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे राजा महाराज वीणा, पुण्य से आपको भक्ति मिलने का कोई गारंटी नहीं है। केवल आप हो सकता है इंद्र जैसा आपको धन मिले या ऐश्वर्य मिले, लेकिन वो ऐश्वर्य जब मिलेगा और अगर वो आप उसमें उस चकाचौंध में आपका वो नशा सर पे चढ़ गया, तो आप एकदम भौतिकवादी की तरह आपका जीवन जियोगे, बिना कोई धर्म का कोई नहीं रखते हुए, और बहुत ही पाप में जीवन जिएंगे हम लोग। तो इसलिए पुण्य का कोई गारंटी नहीं कि हमको भक्ति मिल सकता है। इसलिए हमेशा हम लोग जब भी किसी देवी देवता या किसी वरिष्ठ भक्त से मिलते हैं, तो हम लोगों को केवल भगवान की भक्ति के बारे में ही उनसे मांगनी चाहिए कि हमको भक्ति दे। हम लोग कभी ऐसा नहीं मांगना चाहिए कि हमसे कोई पाप ना हो, हम केवल पुण्य कर्म करें, ये नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि भगवान की भक्ति जो है वो पुण्य से भी जैसे शुद्ध, जैसे 3 गुण है, सत्व रजस तमो, तो जो भक्ति है वो शुद्ध सत्व है, सत्व गुण भी जो भौतिक इसमें ही आता है। तो उसी तरह से पुण्य कर्म भी जो है वो भौतिक दायरे में ही आता है। लेकिन कृष्ण भक्ति जो है वो पुण्य कर्म से भी ऊपर है, उसमें ना आपको पाप ना पुण्य, वो आपका कृष्ण भक्ति जो है शाश्वत एक कार्य है, शाश्वत कार्य। उसमें हमारा चेतना भी शुद्ध होता है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और हम सबसे जो अच्छा कार्य है वो करते हैं, जिससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और सारा उससे जितना भी हमारे आजू बाजू जितने भी लोग हैं या जो वातावरण है वो भी शुद्ध हो जाता है। लेकिन पुण्य कर्म क्या है? पुण्य कर्म वो कर्म कांड में आ जाता है। वो उसका आपको अच्छा फल मिलेगा, जिससे आपको भोगने की इच्छा और होगी। पुण्य कर्म वही करते हैं जिनको भोग की इच्छा होती है, ताकि मैं अच्छा कार्य करूं और ज्यादा भोगूं। लेकिन जो भक्त होते हैं निष्काम होने के कारण वो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, इसलिए वो भक्ति कहलाती है।
पुण्य से भी परे हो जाती है। तो यहाँ पे महाराज वेणु के संदर्भ में हमको पता चलता है, भले ही उन्होंने बहुत सारा पुण्य अर्जित करके महाराज बने, लेकिन क्योंकि वो पुण्य था, भक्ति नहीं थी, वह उनकी चेतना शुद्ध ना होने के कारण वो अधर्मी राजा बने। तो पुण्य मतलब पुण्यवान व्यक्ति, इसलिए हम लोग कहते हैं ना, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुराः हराव अभक्तस्य कुतो महद गुणा। अगर कोई भक्त हरि का भक्त नहीं है तो उसमें कोई अच्छे गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भले ही पुण्य कार्य करता है, लेकिन वो पुण्य कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसको अंदर से भोगने की इच्छा है। तो उसको लगता है मैं अच्छे कार्य करूंगा तो इसके वजह से मुझे अच्छा फल मिलेगा, और वो अच्छा फल से मैं और ज्यादा भोग करूंगा। तो इसके वजह से शास्त्र कहते हैं हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा। तो जितने भी आपको बड़े बड़े दानवीर सब दिखते हैं, अगर आपको लगता है कि अच्छे व्यक्ति है, लेकिन अगर वो कृष्ण से संबंध नहीं है, वो इतना सब दान करके अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, वो इवन वो जब दान करते हैं उनको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं देखो कितना बड़ा दानवीर हूँ, तो फिर क्या होता है, वो कोई उसका फायदा नहीं। भगवान उसका दान के बजाय उनको कुछ पुण्य कर्म दे देंगे जिससे वो और भोग करेंगे, वहीं पे वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो हर चीज वो जानते हैं कि मैं केवल एक निमित्त हूँ, ये सारा भगवान कर रहे हैं। तो हमको इससे पता चलता है कि हम लोगों को कभी पुण्य पाप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमको केवल भक्ति के बारे में सोचना है। हर कार्य हमको भक्ति मतलब भगवान की भक्ति से संबंध उसको जोड़ना है, तो तभी हमारा जीवन जो है अच्छा हो जाएगा। नहीं तो पुण्य कमा कमा के हम ब्रह्मा भी बन जाएंगे, लेकिन फिर वापस जैसे ब्रह्मा भी कभी कभी विमोहित होते हैं, हम भी विमोहित हो सकते हैं। और ये कह के मैं रुकता हूँ, और बाकी जितने भक्त हैं आपसे जस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके उपलक्ष्य में आप भी कुछ के, क्योंकि मैंने ज़्यादा इसमें प्रिपरेशन नहीं किया था, तो आपने हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स इस परपट या इस रिलेटेड टू दिस श्लोका आपके रहेंगे, तो प्लीज शेयर कीजिए। और वापस माफी चाहता हूँ, हरे कृष्णा फॉर दिस ग्रॉस मिस्टेक। नेक्स्ट नॉर्मली मेरा वेडनेसडे क्लास होता है, तो मैंने वो देखा नहीं था शेड्यूल, तो रियली अगेन सॉरी, मुझे माफ करना सर। सारे वैष्णव के चरणों में मेरा मुझे प्लीज माफ करना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। सॉरी वंस अगेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मला लक्षात नव्हता तरी पण एवढ्या गर्मीमध्ये क्लास दिला आणि थोड्या वेळात बरोबर सांगितलं सगळं। बहुत हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो अब कहिएगा प्रभु जी से। प्रभु जी आज बहुत सारे लोग भक्ति शास्त्र के लिए बिजी है, कुछ बोल नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा। जय। एक्चुअली इसकी वजह से माता जी बच गया मैं। अगर गोपीमोहन प्रभु को पता चलेगा तो वो बहुत बोलेंगे। तो थैंक यू। नहीं प्रभु नहीं कहा सरोदे गिरधारी प्रभु जी देख भी रहे हैं इस उनके मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। प्रभु बोले कि शायद प्रभु भूल गए होंगे। आप सरोदे प्रभु को बोला कि आप कॉल कीजिए, प्रभु भूल गए शायद, लॉगिंग नहीं किया अभी तक। मैं भाग गई अभी। टेंशन हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैं याद करवाऊंगी अभी सबको। मेरे प्रभु को बोला कि मैं पर्सनली सबको याद करवाऊंगी, तो नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। जय माता जी कुछ कहना चाहती है? जय माता। हरे
दया। हरे कृष्णा सुरत माता प्रभु जी, हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी, दंडवत प्रणाम। सुरत माता प्रभु जी, सॉरी मेरा थोड़ा सा मिस हुआ, लेकिन जितना मैंने सुना बहुत अच्छा था। कुछ पॉइंट्स जैसे आपने कहा था कि अगर किसी को ऐड करने, तो मैं उसमें तो इसके उपलक्ष्य में एक ऐड करना चाहूंगी। जैसे जो ब्रह्मा का एग्जाम्पल था, जैसे ब्रह्मा देव हम देखते हैं, ये सारे जो डेमी गॉड्स हैं, देवी देवता, तो उसमें मैं थोड़े दिन पहले एक हमारे इस्कॉन अहमदाबाद की क्लास में सुन रही थी। प्रभु जी जो स्पीकर प्रभु जी बता रहे थे कि ये जो 84 लाख योनियां हैं, उनमें से हम सारे ही पार करके आए हैं, तो उनमें डेमी गॉड्स भी उसी में ही आता है। 84 लाख की योनियों में ही डेमी गॉड्स भी आते हैं। मतलब हम जैसे आपने खुद भी एक बार हमें बताया था कि हम भी कभी ब्रह्मा या कभी इंद्र रहे होंगे। तो क्योंकि इसीलिए ये होता है, क्योंकि ये जो डेमिगॉड्स की पोजीशन भी 84 लाख योनियों में गिनी जाती है, ये इसी में आती है। तो बस प्रभु जी ये मुझे ऐड करना था। और एंड में आपने जैसे प्रभु जी कहा कि जैसे मैं इस क्लास के लिए इतनी तैयारी नहीं कर पाया, तो मैं कुछ दिन पहले इस्कॉन जोधपुर की क्लास सुन रही थी। तो उसमें भी क्या हुआ था, जो प्रभु जी आए थे ना, उन्होंने क्लास को ठीक 5 मिनट या 7 मिनट पहले खत्म कर दिया, और उन्होंने कहा कि इसमें मैं इतनी ज्यादा तैयारी नहीं कर पाया। तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन आपने इतनी बार क्षमा मांगी। लेकिन जो वो प्रभु जी थे ना, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं इसमें इतनी ज्यादा तैयारी नहीं कर पाया। और एंड में उन्होंने कहा किसी को कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और मतलब उन्होंने भी ऐसे ही सॉरी एक बार बोला। तो भक्त ऐसे होते कि वो समझते हैं और वो माफ कर देते हैं। तो फिर भी आपकी ह्यूमिलिटी है कि आपने इतनी बार क्षमा मांगी। भक्त समझ पाते हैं कि कभी कभी इंसान को इतना टाइम बिजी होने की वजह से नहीं मिला। हम ये नहीं देखते कि कितना जल्दी खत्म हो गया। हम ये देखते हैं कि भगवान के बारे में कितनी देर बताया तो सही, हमें हमारा दिन शुभ तो किया उस भक्त ने। तो बस आपने जो समझाया प्रभु, वही बहुत है हमारे लिए। तो भगवान के उपलक्ष्य में ये मैटर ही नहीं करता कि 5-10 मिनट पहले खत्म कर दिया। जितना आपने बताया वही हमारे लिए अमृत है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर कहा जया। मुझे लगा क्वेश्चन के लिए हाथ उठाया, लेकिन तुमने तो बहुत अच्छा कहा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, ये पॉइंट भी बहुत अच्छे है माता जी, आप सबसे हमें हरे कृष्णा। क्या होता है माता जी, आप सारे वक्त इतने प्रभु जी आपका थोड़ा आवाज कट रहा है। हरे कृष्णा। क्योंकि मतलब यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं अपना बहुमूल्य समय लेके आते हैं, तो वही मतलब हमको वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट यू आर कमिंग विद सो मच सिंसियरिटी सुनने के लिए। तो ये हमारा उत्तरदायित्व होता है, मतलब हर स्पीकर का, कि उनका टाइम जो है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वो पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं भगवान के बारे में सुनने के लिए। तो यस माता जी, थैंक यू सो मच। और आप इतने अच्छे सारे भक्त हैं कि मतलब आपके मतलब इतने करुणामयी है, जस्ट टू एनकरेज आप लोग। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट टाइम इससे नहीं होगी। हरे कृष्ण।